Sir, if I speak of women, more than 86 women are raped every day in this country. A number that reflects systematic collapse, not isolated crime. Sir, Bengal exercised its constitutional authority and passed the Aparajita Bill, a stringent anti-rape law providing the strongest deterrence against crime against women. So the bill was duly sent to the Union through the governor about 18 to 19 months ago. For a year and a half, it has remained pending without any decision. So when a democratically passed law maintained to strengthen protection is left in a limbo, it expresses a lack of intent. This reminds me that I come from an India that promises to double farmers' income. And I come from an India where 1,11,174 farmers and agricultural laborers, brothers and sisters have been forced to commit suicide. I come from an India which launched Beti Bachao, Beti Padhao. And I come from another India where every 16 minutes a rape or a crime against women is being reported. So now I come to three cracks in the Constitution. Number one, so hatred has now been normalized. It has moved from margin to the mainstream. So if I talk about cases registered for promoting enmity between religious and social groups, the number of cases has doubled between 2021 and 2023. And this rise didn't happen in silence. It happened alongside political speeches, public rallies, and calculated dog whistles. When hate goes unpunished, it spreads. When it spreads, minorities pay the price. Second, hate is no longer whispered. It has become a broadcast. So our country has documented more than 1,300 hate speeches in a single year. When such volume of hate fills public space, the government refuses to act decisively, swiftly, then the message is clear, sir. Intimidation is tolerated and silence is the union's policy. Third, sir, the education empowerment scheme under the Ministry of Minority Affairs has just used 8% of its total funds, while the 35% of the ministry's allocation, 27% under tribal affairs and 28% under scheduled tribes remain unutilized. आज जो आपका सामने खड़े होकर बजट का आलोचना करते हैं, उसको एक बार पूछिए कि पश्चिम बंगाल से लोग काम के लिए बाहर जा रहे हैं। एक वो जमाना था जिस समय उत्तर प्रदेश, बिहार से लोग आते थे बंगाल में काम की खोज के लिए। आज वो जमाना आ गया जब हम लोग बाहर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आयुष्मान भारत को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर कोई भी माइग्रेंट लेबर बाहर में जाकर के किसी मुसीबत में फंस गए तो उसका क्या होगा? उसका स्वास्थ्य साथी कार्ड उधर नहीं चलेगा। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी बांग्लादेशी पकड़ा गया तो उसका पास से जो भी आधार कार्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा। वो बोल रहे हैं वो मिल रहा है पश्चिम बंगाल से मुहैया करा दिया गया। 4 स्टेट्स है। It is not me. It is the Reserve Bank of India. They have stated 4 years back that 72% of the fake currency are coming from West Bengal and from a particular place, that is Kalia Chowk of Malda district. These are the situations. That we have been loan organization. We have been fighting tooth and nail against this infiltration. जो लोग एक बार इस देश को छोड़ के चले गए थे, जो लोग नारा लगाए थे, हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान। Minority has a right to self-determination. We want the right of self-determination. जो इस देश को खंडित करके चला गया, जो वंदे मातरम को खंडन करके जो इस देश को भी खंडित कर दिया, जो लोग आज वही लोग हमारा सामने आकर इसका ऊपर आलोचना कर रहे हैं। हम चाहते हैं पूरा सदन को यह सोचना चाहिए, समय आ गया है जो केंद्र और राज्य के बीच में कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, वो एक समन्वय का भावना लेकर काम करे। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, सिर्फ मोदी जी को विरोध करना है,
मोदी जी को छोटा दिखाना है। इसी का कारण आज सारे के सारे प्रोजेक्ट जो यहां से भेजे जा रहे हैं उसको रोक दिया जा रहा है। अगर नाम बदला जा रहा है, सरकार बोल रहे हैं हमको रुपया चाहिए, 2 लाख करोड़ रुपया बाकी है। किस चीज का बाकी? ये उसका डिमांड नहीं है, ये उसका स्टेटमेंट है। 2 लाख रुपया कैसे, कहां से? ये बोल रहे हैं हम लोग रुपया लेंगे मगर हिसाब नहीं देंगे। लेना हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन हिसाब देना हमारा भास नहीं है। इसीलिए आज हमारा हालत इसी जगह पे पहुंच गए। सर हमारा आपका पास हमारा एक ही विनती है, जो लोग आज ये एक्सोडस के लिए दायी है, आज सारे लोग बंगाल छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? आज इतना किसानों ने क्यों आत्महत्या किया? फैक्ट्स तो सामने नहीं आ रहे। इन ब्रिटिश इंडिया जब किसान मर जाते वो लोग बोलते थे मृत्यु का कारण कोई खाना नहीं मिलना नहीं है, मृत्यु का कारण होता है मेल न्यूट्रिशन। एंड इन इंडिपेंडेंट इंडिया व्हाट वी आर डूइंग, जब भी पश्चिम बंगाल में कोई किसान आत्महत्या कर लेते वो बोलते हैं इसका कारण है उसका मानसिक अवसाद, इसका कारण है उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, that is why he disturbed and committed suicide. That cannot be, will not be accepted in any society, sir. Now what they are saying, ये लोग बोल रहे हैं ये बजट के से पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं मिला। फ्रेट कॉरिडोर किसको मिला? गर्ल्स हॉस्टल किसको मिला? 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स बीइंग स्टॉल्ड बाय दिस गवर्नमेंट। ये सरकार का कोई नीति नहीं है। ये घोषणा कर दिया था कि सरकार कोई जमीन एक्विजिशन नहीं करेंगे, आज लोग मर रहे हैं। और माननीय गृह मंत्री, हमारा वित्त मंत्री आज नहीं है। मेरा एक प्रेयर है, इट इज माई प्रेयर टू हर ऑगस्ट सेल्फ सर, ये हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वी हैव सेम फ्रेटर्निटी, हम लोग सभी राजनीति करता है। अगर राजनीति करते करते किसी का हत्या हो जाता है तो उसके लिए भी एक फंड का एलोकेशन होना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस ही कितना कार्यकर्ता मारे गए, उधर बैठे हुए कांग्रेसी लोग कितना लोग मारे गए, उसको भी कुछ मुआवजा देना चाहिए। ये ब्रिटिश कहां गए? जॉन ब्रिटिश बन गए तो नहीं, वो है ये कम्युनिस्ट पार्टी, दे वर बर्न्ड अलाइव इन पंचायत इलेक्शन, वन कपल। क्या उसको भी कुछ करना चाहिए? हमारा 300 कार्यकर्ता का बलि हो गया। पोस्ट पोल वायलेंस, इससे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। लोअर जुडिशियरी इज अंडर थ्रेट, टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्की, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसी का कारण आज ऐसा स्थिति आ गया है। आज पोस्ट पोल वायलेंस पे विद इन 27 days from the 2nd May 2021 56 BJP workers have been killed and 27 female our workers have been raped. If this kind of law and order situation, who will come to invest West Bengal? 3,600 company, they have shifted their headquarters from West Bengal to other places.